رمضان کا مہینہ ایک انمول اوسر ہے۔ یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری آتما، ہمارے دل اور ہمارے ارادوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ سمے ہے جب اللہ اپنی رحمت اور برکت کو ہر اس انسان پر برساتا ہے جو سچائی، ایمان اور نیک ارادوں کے ساتھ اپنے دل کو اس کے لیے کھولتا ہے۔ روزہ کیول بھوک اور پیاس کو سہنے کا نام نہیں ہے، یہ ہماری اچھاؤں اور نفس کو قابو میں کرنے، بری عادتوں سے دور رہنے اور اپنے کرموں کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ ہر سحری کا اٹھنا، ہر افطار کا سمے ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصلی طاقت ہمارے ارادوں، ہماری محنت اور ہمارے دھیریہ میں ہے۔ اس رمضان اپنے آپ سے سوال کرو، کیا میں اپنے ارادوں میں سچائی لا رہا ہوں؟ کیا میں اپنے روزہ، نماز، دعا اور نیک کاموں کو صرف رسموں کی طرح نہیں بلکہ پوری ایمانداری اور اللہ کی خوشیوں کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ سمے ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اپنی آتما کو شدھ کرنے اور اللہ کے قریب آنے کا۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کٹھنائی میں اللہ کی رحمت چھپی ہے۔ روزہ کیول شریر کی بھوک اور پیاس کو نینترت نہیں کرتا، بلکہ یہ ہماری آتما کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ جب ہم اپنے نفس اور اچھاؤں کو نینترت کرتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کی یاد میں مضبوط ہوتا ہے اور ہماری آتما کو اصلی شانتی ملتی ہے۔ اس مہینے میں ہر دعا، ہر نیک کام اور ہر عبادت کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ ہر نیک انسان کے ساتھ ہے اور اس کی مدد ہمیشہ اس کے پاس آتی ہے۔ جو انسان اس رمضان میں اپنے ارادوں اور کرموں میں سچائی لاتا ہے، اس کی زندگی میں نور اور برکت آتی ہے، اس کی آتما مضبوط ہوتی ہے، اس کا دل شانت ہوتا ہے اور وہ ہر مشکل میں دھیریہ اور ہمت سے آگے بڑھتا ہے۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کا اصلی مقصد صرف اس دنیا میں جینا نہیں، بلکہ اپنے دل اور آتما کو سدھارنا ہے۔ یہ سمے ہے اپنے نفس کو نینترت کرنے، دوسروں کے لیے بھلائی کرنے اور اپنے کرموں میں نیک ارادے لانے کا۔ جو انسان اس سمے اللہ کے ساتھ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں سفل ہوتا ہے۔ اس رمضان میں اپنے دل کو اللہ کی یاد اور اس کی رحمت سے بھرو، اپنے کرموں میں سچائی لاؤ، نیک ارادوں سے اپنے روزہ اور عبادت کو پورا کرو، اپنے نزدیکی لوگوں کے لیے بھلائی کرو اور ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ یاد رکھو، اصلی طاقت کیول ان کے پاس ہے جو ایمان اور دھیریہ کے ساتھ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں۔ رمضان کا ہر دن، ہر رات اور ہر پل ہماری آتما کو سدھارنے کا اوسر ہے۔ یہ سمے ہے خود کے بھیتر طاقت کھوجنے کا، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کا اور اللہ کے آدیشوں کے انوسار اپنے جیون کو ڈھالنے کا۔ ہر روزہ، ہر نماز، ہر دعا اور ہر نیک کام ہمیں اللہ کے قریب لاتا ہے اور ہماری آتما کو مضبوط بناتا ہے۔ یاد رکھو، کٹھنائیاں اور چنوتیاں صرف ہماری پریکشا ہے۔ گرنا انسانیت کا حصہ ہے، لیکن اٹھ کر پھر سے اپنے ارادوں اور اپنے ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا اصلی طاقت ہے۔ جو انسان سچائی، ایمان اور نیک ارادوں کے ساتھ اللہ کی راہ پر چلتا ہے، اس کی زندگی میں نور، شانتی اور برکت آتی ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر نیک کام، ہر دعا اور ہر عبادت کا اثر بڑا ہے۔ یہ سمے ہے اپنے دل کو اللہ کے نام سے بھرنے کا، اپنے کرموں کو سدھارنے کا اور ہر مشکل میں دھیریہ اور ہمت رکھنے کا۔ جو انسان اس رمضان میں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے ارادوں اور کرموں کو سدھارتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سفل ہوتا ہے۔ تو اٹھو، اپنے ارادوں کو مضبوط کرو، اپنے کرموں کو نیک بناؤ اور اس رمضان میں اللہ کے قریب آنے کی پوری کوشش کرو۔ اپنے دل میں ایمان اور بھروسہ بنائے رکھو، دوسروں کے لیے بھلائی کرو اور ہر دن اللہ کی رحمت اور نور کو اپنے جیون میں محسوس کرو۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان میں اپنے ارادوں اور کرموں کو صحیح دشا دینے کی طاقت دے، ہمارے دلوں میں ایمان اور بھروسہ بنائے رکھے اور ہمارے جیون میں نور اور برکت لائے۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیون ایک پریکشا ہے۔ ہر کٹھنائی، ہر چنوتی اور ہر مشکل صرف اللہ کی طرف سے ہماری مضبوطی اور ایمان کی پریکشا ہے۔ جب انسان ایمان اور دھیریہ کے ساتھ ان پریکشاؤں کا سامنا کرتا ہے تو اللہ اسے انعام دیتا ہے۔ اپنے ارادوں میں سچائی رکھو۔ ہر کام کی سفلتا کیول کرموں سے نہیں بلکہ نیک نیت سے طے ہوتی ہے۔ اگر دل میں ایمانداری ہے اور ادیشیہ اللہ کی رضا ہے تو ہر چنوتی آسان لگنے لگتی ہے۔ گیان کی کھوج کبھی مت چھوڑو۔ قرآن اور حدیث کے گیان کو اپنے جیون میں اتارو۔
ज्ञान इंसान को अज्ञानता और भ्रम से दूर रखता है। हर रोज कुछ नया सीखो और सीखने को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इबादत को केवल नियम समझकर मत करो। नमाज, रोजा, ज़कात और नेक काम आत्मा को मजबूती और दिल को सुकून देते हैं। छोटी छोटी नेकियतें भी अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी हैं। मुस्कान, मदद, दया और दूसरों के लिए सहानुभूति, ये सभी नेक कर्म अल्लाह के करीब ले जाते हैं। धैर्य और सब्र जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। मुश्किल समय में संयम और सही निर्णय लेने वाला इंसान सच्चे मुसलमान की पहचान है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सब्र करने वालों को अल्लाह की मदद मिलेगी। अच्छी संगत का चुनाव करो, नेक और प्रेरक लोगों के साथ रहो। गलत संगत इंसान को भटकाती है और उसके दिल को कमजोर करती है। हमेशा सकारात्मक और नेक संगत चुनो जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। हर दिन अपने कर्मों और इरादों का मूल्यांकन करो। सोचो कि क्या मैं अल्लाह के हुक्म के अनुसार जी रहा हूं। गलती हो तो उसे सुधारो। आत्मनिरीक्षण और सुधार इंसान को मजबूत बनाते हैं। दुआ करना कभी मत छोड़ो। दुआ केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा का संपर्क है। कठिन समय में अल्लाह से मदद मांगो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुआ सबसे मजबूत हथियार है। नकारात्मक सोच और आलस्य से दूर रहो। हमेशा प्रेरित रहो और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ो। छोटे नेक काम भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। मुस्कान, मदद, दया और दूसरों के लिए सहानुभूति, ये सब अल्लाह की नजर में महत्वपूर्ण है। समय की कद्र करो। हर दिन को एक अवसर मानो अपने ज्ञान, इबादत और नेक कामों को बढ़ाने का। समय की बर्बादी इंसान को कमजोर बनाती है, जबकि समय का सदुपयोग इंसान को मजबूत बनाता है। सच्चाई और ईमानदारी अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, अपने इरादों में सच्चाई और अपने दिल में उम्मीद रखो। यही असली मुसलमान होने की पहचान है। हर दिन खुद को सुधारो। अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने का प्रयास करो। गलतियों से सीखो, अपने चरित्र को मजबूत करो और अल्लाह के मार्ग पर लगातार चलते रहो। याद रखो, मुसलमान होने का मतलब सिर्फ नाम नहीं है। इसका मतलब है हर दिन खुद को सुधारना, नेक काम करना और अल्लाह के मार्ग पर चलना। अपने इरादों में सच्चाई, कर्मों में ईमानदारी और दिल में उम्मीद रखो। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। रमजान का महीना सिर्फ रोजा रखने का नहीं बल्कि आत्मा और दिल को सुधारने का महीना है। ये वह समय है जब अल्लाह अपनी रहमत और बरकत हर उस इंसान पर बरसाता है जो अपने इरादों और कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी लाता है। रोजा केवल भूख और प्यास सहने का नाम नहीं है। यह हमारी इच्छाओं और नफ्स को काबू में करने, बुरी आदतों से दूर रहने और अपने कर्मों को सुधारने का जरिया है। हर सहरी, हर इफ्तार हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत हमारे इरादों, धैर्य और मेहनत में है। रमजान में हर इंसान को अपनी आत्मा और ईमान पर ध्यान देना चाहिए। अपने दिल में अल्लाह की याद और उसकी खुशियों के लिए जगह बनाओ। ये महीना हमें सिखाता है कि हर मुश्किल में अल्लाह की रहमत छिपी है और हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए है। नमाज हमारी आत्मा का पोषण है। रोजा हमारी इच्छाओं पर काबू पाता है और दान और नेक काम हमारे कर्मों को नूर और बरकत देते हैं। जो इंसान अपने इरादों और कर्मों में सच्चाई लाता है, उसकी जिंदगी में नूर और सफलता आती है। उसकी आत्मा मजबूत होती है, उसका दिल शांत होता है और वह हर मुश्किल का सामना धैर्य और हिम्मत से करता है। रमजान का हर दिन, हर रात और हर पल हमारी आत्मा को सुधारने का अवसर है। ये समय है अपने नफ्स और कमजोरियों को नियंत्रित करने का, अपने कर्मों में नेक इरादों को लाने का और अल्लाह के करीब आने का। हर रोजा, हर नमाज, हर दुआ और हर नेक काम हमें अल्लाह के नजदीक ले जाता है और हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। याद रखो, मुश्किलें और चुनौतियां हमारी परीक्षा हैं। गिरना इंसानियत का हिस्सा है, लेकिन उठकर फिर से अपने इरादों और ईमान के साथ आगे बढ़ना असली ताकत है। जो इंसान ईमान और नेक इरादों के साथ अल्लाह की राह पर चलता है, उसकी जिंदगी में नूर, शांति और बरकत आती है। तो उठो, अपने इरादों को मजबूत करो, अपने कर्मों को सुधारो और इस रमजान में अल्लाह के करीब आने की पूरी कोशिश करो।
अपने दिल में ईमान और भरोसा बनाए रखो, दूसरों के लिए भलाई करो और हर दिन अल्लाह की रहमत और नूर को अपने जीवन में महसूस करो। अल्लाह हम सबको इस रमजान में अपने इरादों और कर्मों को सही दिशा देने की ताकत दे, हमारे दिलों में ईमान और भरोसा बनाए रखे। रमजान का महीना हर मुसलमान के लिए एक विशेष अवसर है। ये केवल रोजा रखने का महीना नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत करने, इरादों को साफ करने और अल्लाह के करीब आने का महीना है। इस महीने में अल्लाह की रहमत और बरकत हर उस इंसान पर बरसती है जो सच्चाई, ईमान और नेक इरादों के साथ अपने दिल को उसके लिए खोलता है। रोजा केवल भूख और प्यास सहने का नाम नहीं है, ये हमारी इच्छाओं और नफ्स को काबू में करने, बुरी आदतों से दूर रहने और अपने कर्मों में सुधार लाने का जरिया है। हर सहरी, हर इफ्तार हमें याद दिलाता है कि असली ताकत हमारे धैर्य, हमारे नेक इरादों और हमारी मेहनत में है। रमजान में हमें अपने दिल और आत्मा को अल्लाह की याद से भरना चाहिए। यह समय है अपने ईमान को मजबूत करने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का और नेक इरादों के साथ अपने कर्मों को बेहतर बनाने का। हर दुआ, हर नेक काम और हर इबादत इस महीने में कई गुना बरकत लेकर आती है। नमाज हमारी आत्मा का पोषण है, रोजा हमारी इच्छाओं पर काबू पाता है और दान और नेक काम हमारे कर्मों को नूर और बरकत देते हैं। जो इंसान अपने इरादों और कर्मों में सच्चाई लाता है, उसकी जिंदगी में नूर और सफलता आती है। उसकी आत्मा मजबूत होती है, उसका दिल शांत होता है और वह हर मुश्किल का सामना धैर्य और हिम्मत से करता है। रमजान का हर दिन, हर रात और हर पल हमारी आत्मा को सुधारने का अवसर है। यह समय है अपने नफ्स और कमजोरियों को नियंत्रित करने का, अपने कर्मों में नेक इरादों को लाने का और अल्लाह के करीब आने का। हर रोजा, हर नमाज, हर दुआ और हर नेक काम हमें अल्लाह के नजदीक ले जाता है और हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। याद रखो, कठिनाइयां और चुनौतियां हमारी परीक्षा है। गिरना इंसानियत का हिस्सा है, लेकिन उठकर फिर से अपने इरादों और ईमान के साथ आगे बढ़ना असली ताकत है। जो इंसान ईमान और नेक इरादों के साथ अल्लाह की राह पर चलता है, उसकी जिंदगी में नूर, शांति और बरकत आती है। इस रमजान में हर दिन उठो और अपने दिन की शुरुआत अल्लाह की याद और शुक्र अदा करने से करो। अपने कर्मों में सच्चाई लाओ, दूसरों के लिए भलाई करो और हर मुश्किल में धैर्य रखो। यही असली ताकत और असली सफलता है। अल्लाह हम सबको इस रमजान में अपने इरादों और कर्मों को सही दिशा देने की ताकत दे, हमारे दिलों में ईमान और भरोसा बनाए रखे और हमारे जीवन में नूर और बरकत लाए। आमीन। रमजान का महीना हर मुसलमान के जीवन में सबसे अहम अवसर है। ये केवल रोजा रखने का समय नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा, हमारे इरादों और हमारे कर्मों को सुधारने, उन्हें मजबूत करने और अल्लाह के करीब लाने का महीना है। ये वह समय है जब अल्लाह अपनी रहमत और बरकत हर उस इंसान पर बरसाता है जो नेक इरादों और सच्चाई के साथ अपने दिल को उसके लिए खोलता है। रोजा केवल भूख और प्यास सहने का नाम नहीं है, यह हमारी इच्छाओं, नफ्स और बुरी आदतों को काबू में करने का सबसे बड़ा साधन है। हर सहरी, हर इफ्तार हमें यह याद दिलाता है कि असली ताकत हमारे इरादों, हमारे धैर्य और हमारी मेहनत में है। यह समय है अपने दिल और आत्मा को अल्लाह की याद से भरने का, अपने इरादों को नेक बनाने का और हर नेक कर्म में पूरी ईमानदारी और लगन दिखाने का। रमजान हमें यह सिखाता है कि हर मुश्किल, हर गिरावट और हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए है। गिरना इंसानियत का हिस्सा है, लेकिन उठकर फिर से अपने इरादों और अपने ईमान के साथ आगे बढ़ना असली ताकत है। जो इंसान ईमान और नेक इरादों के साथ अल्लाह की राह पर चलता है, उसकी जिंदगी में नूर, शांति और बरकत आती है। नमाज, रोजा, दान और नेक काम केवल इबादत नहीं है, ये हमारे कर्मों को रोशन करने वाले साधन हैं, हमारी आत्मा को ताकत देने वाले माध्यम हैं और हमारे दिल को शांति देने वाले मार्ग हैं। जब इंसान अपने दिन की शुरुआत फज्र की नमाज और अल्लाह की याद से करता है, तो उसका दिन नूर और बरकत से भर जाता है। रमजान का हर पल हमें अपने नफ्स, अपनी इच्छाओं और कमजोरियों पर काबू पाने का अवसर देता है। यह समय है अपने इरादों को मजबूत करने का, अपने कर्मों में नेक इरादे लाने का और अपने दिल को अल्लाह के नाम से भरने का। हर दुआ, हर नेक काम और हर इबादत
इस महीने में कई गुना असर डालती है। रमजान का महीना केवल खुद के लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए भलाई करने, जरूरतमंदों की मदद करने और समाज में अच्छाई फैलाने का समय भी है। जो इंसान इस समय अपने इरादों और कर्मों में सच्चाई लाता है, उसकी जिंदगी में नूर और सफलता आती है। उसकी आत्मा मजबूत होती है, उसका दिल शांत होता है और वह हर मुश्किल का सामना धैर्य और हिम्मत से करता है। याद रखो, कठिनाइयां और चुनौतियां केवल हमारी परीक्षा हैं। हर रोजा, हर नमाज, हर दुआ और हर नेक काम हमें अल्लाह के नजदीक लाता है और हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। गिरना कमजोरी नहीं है, लेकिन उठकर फिर से सच्चाई और ईमान के साथ आगे बढ़ना असली ताकत है। रमजान में हर सुबह उठो और अपने दिन की शुरुआत अल्लाह की याद और उसके नाम की ताकत से करो। अपने दिल और कर्मों को साफ रखो, दूसरों के लिए नेक बनो और हर कठिनाई में धैर्य और हिम्मत बनाए रखो। यही असली ताकत है, यही असली सफलता है और यही असली खुशी है। इस महीने का हर रोज, हर शाम और हर रात हमारे लिए अल्लाह के करीब जाने का अवसर है। यह समय है अपनी आत्मा को सुधारने, अपने इरादों को मजबूत करने और अपने कर्मों में अच्छाई लाने का। जो इंसान इस रमजान में पूरी ईमानदारी और नेक इरादों के साथ चलता है, वह दुनिया और आखिरत दोनों में सफल होता है। तो उठो, अपने इरादों को मजबूत करो, अपने कर्मों को नेक बनाओ और इस रमजान में अल्लाह के करीब आने की पूरी कोशिश करो। अपने दिल में ईमान और भरोसा बनाए रखो, दूसरों के लिए भलाई करो और हर दिन अल्लाह की रहमत और नूर को अपने जीवन में महसूस करो। अल्लाह हम सबको इस रमजान में अपने इरादों और कर्मों को सही दिशा देने की ताकत दे, हमारे दिलों में ईमान और भरोसा बनाए रखे और हमारे जीवन में नूर और बरकत लाए। आज का दिन, आज का पल हमारे लिए अल्लाह की रहमत और बरकत का सबसे बड़ा अवसर है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में केवल जीने के लिए नहीं भेजा, बल्कि हमें अपने इरादों, अपने कर्मों और अपने दिल की सफाई के लिए भेजा है। हर मुसलमान के अंदर एक अनमोल शक्ति है जो तब जागती है जब हम अपने नफ्स पर काबू पाते हैं और अल्लाह की राह पर पूरी ईमानदारी और लगन से चलते हैं। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि मुसलमान वही है जो मुश्किलों में धैर्य रखे, जो अपने कर्मों में ईमानदार रहे और जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखे। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने और हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। गिरना इंसानियत का हिस्सा है, लेकिन उठकर फिर से सही राह पर चलना असली ताकत है। नमाज केवल एक फर्ज नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा का पोषण है। फज्र की नमाज, अल्लाह की याद और सजदे में दिल की नमी हमें मानसिक और रूहानी शक्ति देती है। रोजा केवल भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, यह हमारी इच्छाओं और नफ्स को नियंत्रित करने, बुरी आदतों से दूर रहने और अपने कर्मों को बेहतर बनाने का जरिया है। रमजान में हर रोजा, हर इबादत और हर नेक काम हमारी आत्मा को मजबूत करता है। दान, मदद और दूसरों के लिए भलाई करने से अल्लाह का इनाम कई गुना बढ़ जाता है। जो इंसान इस महीने में अपने इरादों और कर्मों में सच्चाई लाता है, उसकी जिंदगी में नूर और सफलता आती है। उसका दिल शांत होता है, उसकी आत्मा मजबूत होती है और वह हर मुश्किल का सामना धैर्य और हिम्मत से करता है। रमजान केवल खुद के लिए नहीं है, यह दूसरों के लिए अच्छाई फैलाने का भी अवसर है। जो इंसान जरूरतमंदों की मदद करता है, गरीबों के लिए दुआ करता है और समाज में अच्छाई फैलाता है, उसकी भलाई और उसका इनाम दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। हर नेक काम, हर दुआ और हर इबादत इस महीने में कई गुना असर डालती है। याद रखो, इंसान की असली ताकत उसके इरादों और धैर्य में है। गिरना कमजोरी नहीं, लेकिन उठकर फिर से ईमान और नेक इरादों के साथ आगे बढ़ना असली ताकत है। जो इंसान सच्चाई और ईमान के साथ अल्लाह की राह पर चलता है, उसकी जिंदगी में नूर, शांति और बरकत आती है। हर चुनौती और हर कठिनाई उसे मजबूत बनाती है और हर मुश्किल उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। हर सुबह उठो और अपने दिन की शुरुआत अल्लाह की याद और शुक्र अदा करने से करो। अपने कर्मों में सच्चाई लाओ, अपने इरादों को नेक बनाओ और दूसरों के लिए भलाई करो। अपने नजदीकी लोगों के लिए अच्छाई फैलाओ, जरूरतमंदों की मदद करो और अपने दिन को अल्लाह की खुशियों और उसकी रहमत से भर दो। रमजान रोजा, नमाज, दुआ
और नेक काम हमारी आत्मा और ईमान को मजबूत बनाने के साधन हैं। यह समय है अपने नफ्स को काबू में करने का, अपने इरादों को सुधारने का और अपने जीवन को अल्लाह की राह पर पूरी ईमानदारी से ढालने का। जो इंसान इस महीने में पूरी लगन और सच्चाई के साथ अपने इरादों और कर्मों को सुधारता है, वह दुनिया और आखिरत दोनों में सफल होता है। तो उठो, अपने दिल और इरादों को अल्लाह की याद, उसकी रहमत और उसकी खुशियों से भरो। अपने कर्मों में नेक इरादे लाओ, दूसरों के लिए भलाई करो और हर मुश्किल में धैर्य और हिम्मत बनाए रखो। यही असली ताकत है, यही असली सफलता है और यही असली खुशी है। अल्लाह हम सबको इस रमजान में अपने इरादों और कर्मों को सही दिशा देने की ताकत दे, हमारे दिलों में ईमान और भरोसा बनाए रखे, हमारे जीवन में नूर और बरकत लाए और हमें हर कठिनाई में धैर्य और हिम्मत देने वाला बनाए। जब दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तब याद रखना कि तुम्हारा रब तुम्हें बनाने में लगा है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तब याद रखना कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ जाए, तब यकीन रखना कि तकदीर तुम्हारे हक में लिखी जा रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी दुआएं हैं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा ईमान है। तुम खाली हाथ नहीं हो, तुम्हारे पास सब्र है और सब्र के साथ जन्नत की खुशखबरी है। हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद आसानी। कुरान हमें सिखाता है कि मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है, इसलिए उम्मीद को कभी मत छोड़ो। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है लेकिन छोड़ता कभी नहीं। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो गम मत करो, हो सकता है अल्लाह तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा हो। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो समझ लो कि या तो बेहतर चीज लिखी जा रही है या सही वक्त का इंतजार है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तुम्हारे आंसू जया नहीं जाएंगे। तुम्हारी हर सजदा, हर तड़प, हर खामोश दुआ अल्लाह के दरबार में दर्ज हो रही है। अपने गुनाहों से शर्मिंदा हो जाओ, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। वो गफूर है, वो रहीम है, वो तुम्हें बार बार मौका देने वाला है। बस एक सच्चा तौबा और तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अपने सपनों को हल्का मत समझो। अगर तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश है तो यकीन करो कि उसे पूरा करने की ताकत भी तुम्हारे अंदर रखी गई है। नमाज को अपना सहारा बनाओ, कुरान को अपना मार्गदर्शक बनाओ और सब्र को अपना हथियार बनाओ। आज से फैसला कर लो कि शिकायत नहीं, शुक्र अदा करना है। गुनाह नहीं, तौबा करनी है। डर नहीं, भरोसा रखना है। याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है और जब अल्लाह काफी हो जाए तो फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। उठो, वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और दिल से दुआ करो। कहो, या अल्लाह मैं टूट गया हूं, मुझे संभाल ले। या अल्लाह मैं भटक गया हूं, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। देखना, तुम्हारा रब तुम्हें निराश नहीं करेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा रहम करने वाला है और उसकी रहमत तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। रमजान में हर रोजा, हर इबादत और हर नेक काम हमारी आत्मा को मजबूत करता है। दान, मदद और दूसरों के लिए भलाई करने से अल्लाह का इनाम कई गुना बढ़ जाता है। जो इंसान इस महीने में अपने इरादों और कर्मों में सच्चाई लाता है, उसकी जिंदगी में नूर और सफलता आती है। उसका दिल शांत होता है, उसकी आत्मा मजबूत होती है और वह हर मुश्किल का सामना धैर्य और हिम्मत से करता है। रमजान केवल खुद के लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए अच्छाई फैलाने का भी अवसर है। जो इंसान जरूरतमंदों की मदद करता है, गरीबों के लिए दुआ करता है और समाज में अच्छाई फैलाता है, उसकी भलाई और उसका इनाम दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। हर नेक काम, हर दुआ और हर इबादत इस महीने में कई गुना असर डालती है। याद रखो, इंसान की असली ताकत उसके इरादों और धैर्य में है। गिरना कमजोरी नहीं, लेकिन उठकर फिर से ईमान और नेक इरादों के साथ आगे बढ़ना असली ताकत है। जो इंसान सच्चाई और ईमान के साथ अल्लाह की राह पर चलता है, उसकी जिंदगी में नूर, शांति और बरकत आती है। हर चुनौती और हर कठिनाई उसे मजबूत बनाती है और हर मुश्किल उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। हर सुबह उठो और अपने दिन की शुरुआत अल्लाह की याद और शुक्र अदा करने से करो। अपने कर्मों में सच्चाई लाओ, अपने इरादों को नेक बनाओ और दूसरों के लिए भलाई करो। अपने नजदीकी लोगों के लिए अच्छाई फैलाओ,
जरूरतमंदों की मदद करो और अपने दिन को अल्लाह की खुशियों और उसकी रहमत से भर दो। रमजान, रोजा, नमाज, दुआ और नेक काम हमारी आत्मा और ईमान को मजबूत बनाने के साधन हैं। यह समय है अपने नफ्स को काबू में करने का, अपने इरादों को सुधारने का और अपने जीवन को अल्लाह की राह पर पूरी ईमानदारी से ढालने का। जो इंसान इस महीने में पूरी लगन और सच्चाई के साथ अपने इरादों और कर्मों को सुधारता है, वह दुनिया और आखिरत दोनों में सफल होता है। तो उठो, अपने दिल और इरादों को अल्लाह की याद, उसकी रहमत और उसकी खुशियों से भरो। अपने कर्मों में नेक इरादे लाओ, दूसरों के लिए भलाई करो और हर मुश्किल में धैर्य और हिम्मत बनाए रखो। यही असली ताकत है, यही असली सफलता है और यही असली खुशी है। अल्लाह हम सबको इस रमजान में अपने इरादों और कर्मों को सही दिशा देने की ताकत दे, हमारे दिलों में ईमान और भरोसा बनाए रखे, हमारे जीवन में नूर और बरकत लाए और हमें हर कठिनाई में धैर्य और हिम्मत देने वाला बनाए। जब दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तब याद रखना कि तुम्हारा रब तुम्हें बनाने में लगा है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तब याद रखना कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ जाए, तब यकीन रखना कि तकदीर तुम्हारे हक में लिखी जा रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी दुआएं हैं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा ईमान है। तुम खाली हाथ नहीं हो, तुम्हारे पास सब्र है और सब्र के साथ जन्नत की खुशखबरी है। हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद आसानी। कुरान हमें सिखाता है कि मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है, इसलिए उम्मीद को कभी मत छोड़ो। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है लेकिन छोड़ता कभी नहीं। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो गम मत करो, हो सकता है अल्लाह तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा हो। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो समझ लो कि या तो बेहतर चीज लिखी जा रही है या सही वक्त का इंतजार है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तुम्हारे आंसू जया नहीं जाएंगे। तुम्हारी हर सजदा, हर तड़प, हर खामोश दुआ अल्लाह के दरबार में दर्ज हो रही है। अपने गुनाहों से शर्मिंदा हो जाओ, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। वो गफूर है, वो रहीम है, वो तुम्हें बार बार मौका देने वाला है। बस एक सच्चा तौबा और तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अपने सपनों को हल्का मत समझो। अगर तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश है तो यकीन करो कि उसे पूरा करने की ताकत भी तुम्हारे अंदर रखी गई है। नमाज को अपना सहारा बनाओ, कुरान को अपना मार्गदर्शक बनाओ और सब्र को अपना हथियार बनाओ। आज से फैसला कर लो कि शिकायत नहीं, शुक्र अदा करना है। गुनाह नहीं, तौबा करनी है। डर नहीं, भरोसा रखना है। याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और जब अल्लाह काफी हो जाए तो फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। उठो, वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और दिल से दुआ करो। कहो, या अल्लाह मैं टूट गया हूं, मुझे संभाल ले। या अल्लाह मैं भटक गया हूं, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। देखना, तुम्हारा रब तुम्हें निराश नहीं करेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा रहम करने वाला है और उसकी रहमत तुम्हारी सोच से भी बड़ी है।